Hello and welcome. This is the second part of the chapter Globalization. In the first part, we have done the meaning of globalization, causes of globalization, and the economic and political consequences of globalization. Now, in this part, I'm going to start with the cultural consequences and then we'll talk about opposition to globalization and India. Okay, so this almost the rest of the chapter I'll try to cover up in this part. Let's begin. Cultural consequences of globalization. Now you have seen the two aspects of globalization, economic and political, and the consequences of it, that is the positive consequences and the negative consequences. In terms of culture also, in this area of culture also, we start with the negative consequence first. So the negative consequence is cultural homogenization. Remember that this is a very important topic from this chapter. Most of the time, this only is asked cultural homogenization and cultural heterogenization from this chapter. So understand it well. So cultural homogenization simply means that the differences or diversities in culture that is withering away. तो जितना different culture हमको देखने को मिलता था, diverse culture, बिल्कुल कलरफुल, वो अब विदर अवे हो रहा है और उसकी जगह एक कल्चर ही डोमिनेट कर रहा है. And this one culture that is dominating the world, that happens to be the Western culture or the American culture. ठीक है, तो ये अमेरिकन कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड डोमिनेट कर रहा है. इसमें अगर आप इसको आपको याद हो, हेजमनी वाले चैप्टर में आप लोगों ने सॉफ्ट पावर हेजमनी पढ़ी थी. सॉफ्ट पावर मीन्स पावर इन कल्चरल एरियाज. फाइन. तो ये that is it, this aspect of globalization is linked with the soft power hegemony. We see it associated with it. So soft power hegemony में हम लोग ने ये पढ़ा था कि जो हेजमन है, जो कि सुपर पावर है, उसका कल्चर डोमिनेटिंग कल्चर हो जाता है और ये डोमिनेटिंग कल्चर जो हेजमन है उसको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हेल्प करता है. Okay, so the culture of the dominant society leaves its imprint on the less powerful society and the world begins to look more like the dominant power wishes to be. Okay, तो जो ये अमेरिकन कल्चर है, अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए कि because of this American culture, your dressing, the way of dressing has changed. Okay, and your likings in terms of what to eat has also changed. ठीक है, तो आप वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वो वेस्टर्न ड्रेसेस जो कि ब्रांडेड हों फ्रॉम दी MNCs विच आर बेस्ड इन द वेस्टर्न कंट्रीज. ठीक है, उसके अलावा ईटिंग इन मैकडोनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट्स और सबवेज. ठीक है, तो ये सारे, इससे होता क्या है, इससे जब आप इन चीज़ों को खरीदते हैं, व्हेन यू बिकम देयर कंज्यूमर, देन योर मनी इज बेसिकली गोइंग फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज. ठीक है, तो थ्रू दिस कल्चरल डोमिनेंस, who is being benefited? Economically, the Western countries are being benefited. Number one. Number two, everybody is moving in that direction. ठीक है ना. बहुत ही ये कॉमन देखने में आता है कि अगर आप यंगर जनरेशन में स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एक कॉमन सी चीज़ है दैट इफ़ यू वेयर अ सलवार कुर्ता अ डे, योर फ्रेंड्स स्टार्ट आस्किंग व्हाट्स स्पेशल अबाउट टुडे, व्हाई यू आर वेयरिंग दिस, is it your birthday or is some special occasion. Okay, तो इस तरह की, तो ये एक जो हमारा कॉमन कल्चर है वो वेस्टर्नाइज हो गया है काफ़ी ज़्यादा. इसी को कहते हैं होमोजेनाइजेशन. ठीक है, तो हमारी जो रीजनल डाइवर्सिटी हुआ करती थी, जो हम डिफरेंट कल्चर्स के ड्रेसेस पहनते थे, खाना खाते थे, अब हर जगह वही. जैसे आप अगर इस फोटो में देखें, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये मैकडोनल्ड्स का सिंबल है और ये एक रीजनल लैंग्वेज में मैकडोनल्ड्स लिखा हुआ है. तो ये क्या शो करता है, दैट इन ऑल द रीजन्स द वन थिंग दैट इज डोमिनेटिंग इज द वेस्टर्न कल्चर. Okay, so sometimes it is also called McDonaldization, a term that is associated with cultural homogenization, that
that denotes cultural homogenization. So it is a dangerous thing. We don't realize it, but it is a dangerous thing. I told you how economically also it is dangerous, and it is dangerous for the rich cultural diversity. Okay, this diversity will wither away if this homogenization will continue. Okay, so the Western culture has become the most fascinating culture, and the societies are moving more and more towards westernization. Now this is the negative impact of globalization, and this has all globalization has helped to do that. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो दूसरा साइड, द अदर स्टोरी, द अदर साइड ऑफ द पिक्चर इज कल्चरल हेट्रोजनाइजेशन. हेट्रोजनाइजेशन, हेट्रो मीन्स होता है डाइवर्स, ठीक है, होमो मीन्स होता है सेम. तो हेट्रोजनाइजेशन, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, new types of fusion cultures are emerging, as you can see in the pictures here also. So new types of clothing habits have come west, that is called Indo-Western. तो अगर आप ये देखिए, टिपिकल Indo-Western अटायर है. उसके बाद आप अगर विमेन वेयर में देखिए तो भी Indo-Western is very much in trend. Then if you see the fusion food, a very good example of this is tandoori momo, something I heard. So that is momos, but Indianized momos. Okay, so this fusion food habits are emerging. Okay, all this, what does it denote? कि आपका जो existing culture था, फ्यूजन की वजह से नए नए कल्चर्स निकल रहे हैं. ठीक है, तो आपने निकाल दिया एक इंडो वेस्टर्न, इंडो चाइनीज, इंडो थाई. ओके, सो इस तरह का ये हेट्रोजनाइजेशन हो रहा है, और भी डाइवर्सिटीज जो हैं वो ऐड हो रही हैं. So cultural heterogenization simply means this. Okay, these outside influences enlarge your choices and modify your culture. Okay, so outside influences are not only modifying our culture, but it is making it more diverse. So we see the emergence of the fusion cultures, blue jeans with kurti, khadi kurta. Okay, and each culture in this way is becoming more different and more distinct, which is called cultural heterogenization. Okay, so now if it is asked what is cultural heterogenization, you can tell, you can write simply these points. It is asked mostly for 4 marks, either cultural heterogenization or homogenization or both. Okay, mostly it is asked for 4 marks in the exam. Now the next thing is India and globalization. If you see globalization in India, something I told in the first part of this chapter, that globalization is not a new concept. It had been there in all the times. Okay, so during the colonial period, India was an exporter of primary goods and raw material, and an importer of the finished good. तो आप सबको पता है कि यहाँ से स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते थे. ट्रेडर्स जो थे वो यहाँ से सिल्क रूट के थ्रू दे यूज टू ट्रेड इन स्पाइसेस. यहाँ से स्पाइसेस लेके जाते थे, प्रेशियस ज्वेल्स लेके जाते थे. फिर जब ब्रिटिश आए, देन कॉलोनियल पीरियड में कॉटन, जो रॉ कॉटन था, टी का ट्रायंगुलर ट्रेड होता था फ्रॉम इंडिया. तो इस तरह के बहुत से रॉ मटेरियल्स यहाँ से इन यूरोप और डिफरेंट कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट के डिफरेंट कंट्रीज में जाते थे. एंड फ्रॉम देयर द फिनिश्ड गुड यूज टू कम टू इंडिया. और उसकी वजह से दैट वाज द मेन रीजन ऑफ दिस चीज़ को कहा गया था कि इकोनॉमिक ड्रेन हुआ इंडिया का. हमारा रॉ मटेरियल गया और फिनिश होके हमने उसी चीज़ को महंगे दाम में यहाँ पे खरीदा. After the independence, the government started the policy of protectionism. I remember once it has been asked in exam. तो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई. प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? When the government protects its own home industries by imposing restrictions on imports. ठीक है, तो इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जिससे कि आपकी जो होम इंडस्ट्रीज हैं, आपके अपने देश की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले. अब ये किस तरह से वर्क करता है? इंपोर्ट पे वो क्या करेंगे कि टैरिफ बढ़ा देंगे. ओके, सो इफ यू इंक्रीज टैरिफ ऑन इंपोर्ट, टैरिफ मतलब टैक्सेस,
तो टैरिफ अगर आप इंपोर्ट्स पे इंक्रीज कर देंगे या फिर इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि इंपोर्ट का जो प्राइसेस है, जो भी बाहर से चीज़ें आ रही हैं उनका प्राइसेस हाई हो जाएगा। जब वो प्राइस हाई हो जाएगा और हमारी होम इंडस्ट्रीज का प्राइसेस जब कम रहेंगे तो हमारे जो प्राइसेस हैं दैट विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन कंपैरिजन टू द imports, and in this way the home industries will get a boost. Okay, so since there was a need of giving impetus to the home industries, therefore the government followed the policy of protectionism during after the independence of India. उसके बाद 1991 में there was a major policy change. In 1991 we adopted liberalization. Indian economy को पूरा liberalize किया because उस समय economy बहुत ही crisis में आ गई थी. The foreign exchange reserve for India was reduced a lot, had been reduced, और हमारी government को even गोल्ड को मॉर्गेज करना पड़ा था, सोना गिरवी रखना पड़ा था. तो ये इन सारी इतनी ज़्यादा क्राइसिस में इकोनॉमी थी और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर बने हमारे वो थे मनमोहन सिंह, और फिर हम लोग की इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का डिसीजन लिया गया. तो लिबरलाइज करने में क्या होता है, इकोनॉमी का FDI अलाउ कर देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो आपकी लाइसेंसिंग रिजीम है उसको लीनियंट कर देते हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज की लाइसेंसिंग है वो लीनियंट हो जाती है, और जो टैरिफ इम्पोज होता है बाहर से आने वाली चीज़ों पर उन रिस्ट्रिक्शंस को कम करते हैं. तो FDI की वजह से बहुत सी MNCs इंडिया में आई और उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप की और यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई. तो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में जो है वो बूस्ट आता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. तो ये पूरी एक साइकिल जो होती है वो सेट हो जाती है एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स फास्टर. ओके, सो लाइक that is what was said that globalization had always been there. यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, हम कभी भी वर्ड से कट ऑफ नहीं रहे. लेकिन आफ्टर 1991 the speed has picked up a lot. ओके, तो ये स्पीड ज़्यादा हो गई और इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई आफ्टर 1991. नाउ वी सी रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन के से ऐसा नहीं है कि सब लोग खुश ही हैं. ओके, बहुत से सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, मेनली जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है दैट इज नॉट हैप्पी विद ग्लोबलाइजेशन. Okay, so there had been resistance to globalization not only in India but in different countries, in almost all the countries of the world. There had been groups which are opposing globalization. So these groups, अगर हम broadly इनको classify करने जाएं तो ये leftist और rightist. ठीक है, अब जहाँ भी आपका लेफ्टिस्ट अगर का आ रहा है तो आप ये समझ में आएगी कि ये जो ग्रुप है ये वो ग्रुप है दैट स्टैंड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ओके, तो लेफ्टिस्ट भी अपोज कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को और इनके अपोजिशन का बेसिस इकोनॉमिक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पुअर हैं वो और पुअर होते चले जा रहे हैं. ठीक है, राइटिस्ट जो है वो नेशनलिस्ट के सेंस में उनको लिया करिए. जो राइटिस्ट आप सब वर्ड सुनते हैं तो वो नेशनलिस्ट के सेंस में दिया, जो नेशनल अपने नेशनल कल्चर को तो बढ़ावा देने की बात करते हैं. तो जो राइटिस्ट का अपोजिशन है वो कल्चर के बेसिस पे है, that because of the foreign culture, the culture of their own country is getting affected. ठीक है, तो ये दोनों तरफ से ग्लोबलाइजेशन के लिए रेजिस्टेंस आया है. ठीक है, फॉर द लेफ्टिस्ट एंड फॉर द राइटिस्ट. अब जो most of the global anti-globalization movement है, they are not opposed to the idea of globe. They don't say that stop globalization, but they are critical of one policy of globalization or one program of globalization. तो जैसे कि जो कल्चर जो राइटिस्ट हैं वो कहते हैं कि आपने मीडिया में सारे फॉरेन चैनल्स को एंट्री दे दी है. अब फॉरेन चैनल्स में जो प्रोग्राम होते हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर जनरेशन टू सी. उनका कल्चर दूसरा है, उससे हमारे बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं और हमारा कल्चर बर्बाद हो रहा है. ओके, और जो लेफ्टिस्ट हैं वो जैसे किसी MNC की स्पेशल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वॉलमार्ट की जब एंट्री हो रही थी तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस उसको अपोज करने के लिए आ गए थे. तो दे आर नॉट अपोज टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दे आर नॉट अपोज टू द ग्लोबलाइजेशन पर से, दे आर अपोज टू अ पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ओके,
तो इसमें 1999 में WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एट सीटल alleging unfair economic practices by the powerful states। अब एक डायमेंशन इसमें ये है कि पावरफुल स्टेट्स जो है वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक न्यू कॉलोनियलिज्म स्प्रेड कर रहे हैं। वो मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ओके, कि कैसे वो ऐसा कर रहे हैं। सो इसके लिए काफी ऑपोजिशन हुआ था, दैट थ्रू द ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द पावरफुल स्टेट्स टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज of the backward countries of the developing countries। ओके, अब एक फोरम बना है वर्ल्ड सोशल फोरम, ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है वर्ल्ड सोशल फोरम का। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है दैट ब्रिंग्स टुगेदर मेनी ग्रुप्स दैट आर अपोजिंग ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लेबर ग्रुप्स हैं, यूथ ग्रुप्स हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं, ओके, all the groups that are opposing globalization for one thing or the other। okay, तो ये सारे ग्रुप को एक फोरम रिप्रेजेंट करता है जिसको कहते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम, ये एक बॉडी है। नाउ वी विल सी ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, दैट इन इंडिया how globalization has been, how from where resistance is coming now। so already I told you from the leftist and from the rightist। so left wing से भी आ रहा है और right wing से आ रहा है। तो प्रोटेस्ट हैव कम अप फ्रॉम फोरम लाइक इंडियन सोशल फोरम। आपने अभी वर्ल्ड सोशल फोरम देखा, ऑन दी सेम लाइन इंडियन सोशल फोरम बना है जिसमें कि लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें ट्रेड यूनियंस हैं, फार्मर यूनियंस हैं, एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंट्री ऑफ द MNCs इनटू द रिटेल सेक्टर। तो रिटेल सेक्टर में जब फार्मर यूनियंस आ जाती हैं, तो रिटेल सेक्टर में जब MNCs आ जाते हैं, सॉरी, तो उसकी वजह से फार्मर्स, जो लोकल फार्मर्स हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। तो उसकी वजह से उसका अपोजिशन ग्लोबलाइजेशन को वो लोग अपोज कर रहे हैं, MNCs की एंट्री को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं इसके, जैसे कि पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम, ये बहुत इस पे हो हल्ला हुआ था कि नीम तो इंडिया का, आप समझ लीजिए वेदों में इसका जिक्र है, अथर्ववेद में भी नीम का जिक्र है, तो अब उसको अमेरिका ने पेटेंट कर लिया, फाइन। तो ये इससे भी काफ़ी ऑपोजिशन इसको मिला था कि मतलब एक प्रोडक्ट जो हमारा है उसको आपने पेटेंट कर लिया और हम उसी के लिए अब पैसे भरेंगे। सो दिस टाइप ऑफ tactics are being adopted by the strong and powerful nations, and that is the reason why there are resistance against the practices of globalization। और राइट विंग जो है दे हैव पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टेड टू द कल्चरल इन्फ्लुएंस। उनका ये कहना है कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी वजह से हमारा इंडियन कल्चर बर्बाद हो रहा है। सो दे आर अपोजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन TV चैनल्स इन इंडिया। They are opposing Valentine's Day celebrations or any such celebrations, westernization of the dress taste of the girl students। तो आपने बहुत सा अभी इधर न्यूज़ सुना होगा कि कई यूनिवर्सिटीज़ ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि गर्ल्स के लिए ये ड्रेस कोड होना चाहिए, वो ड्रेस कोड होना चाहिए, और इन सब पे प्रोटेस्ट आए दिन होते रहते हैं। सो in nutshell, this is it, that in India the resistance has been mainly from the left wing and the right wing। So this is all in the chapter. The chapter is not very big, it's a small chapter, and most of the thing you already know। You just need to learn a few facts and just need to organize your answer properly from the point of view of your exams। Okay, otherwise this is a very general chapter and that's why it got finished in 2 videos only। So next I will be doing the second chapter of the second book, Indian politics book, fine। So just keep watching the channel and keep giving your comments and feedbacks। Thank you so much for watching।